Hello everyone. Hi, this is Janish Kota here, and welcome to our video of accounts, wherein we are solving the chapter number 10, financial statement 2 of from the textbook of 11th standard CBSE, and the textbook is accountancy. Okay, so today we are going to solve sum number 4, which is given to us on page number 11414, and presenting you here the entire sum students in this particular video. But before starting with the video, वही बस common चीजें students जो हमें आपको बोलनी होती है, please subscribe कर लो, like कर लो, comment कर लो बच्चे लोग. And students, very important, we are running some online tuitions also for all the kids, online as well as offline. So if you're willing to be a part of it, you can contact us. In the description, you can find our contact number. And so no matter wherever you stay, students, in India or wherever out of India, you can still learn from us, and we will make sure to teach you in a very nice and systematic way, in a professional manner, and giving you utmost personal attention. Okay, तो बच्चे लोग चलो शुरू करेंगे. स्टूडेंट्स, क्या शुरू करेंगे हम सम को डिस्कस करना शुरू करेंगे. And let's start with on question number 4, page number 414. You can see on the screen. Starting from the following trial balance, you are required to prepare. So students, in this particular sum, they have not given us the name of the firm. So if you don't give us the name of the firm, what you can do, you can simply write in the books of firm. Okay. Again, they have given us trial balance and they have given us adjustments. What do we need to make? We need to make trading account, profit account, and balance sheet. सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? चलो ओपनिंग स्टॉक दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, फर्नीचर, फिक्स एसेट, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, फिर दिया बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. Wages will go to trading account. Debtors is a current asset. Sales return, sales return अब आप लिख लो less from sales. And very important, आप sales को टिक कर लो स्टूडेंट. सेल्स में एडजस्टमेंट है. ओके, रेंट P&L, miscellaneous expense P&L. ओके, सैलरीज P&L, कैश करंट asset. ड्रॉइंग स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेस फ्रॉम कैपिटल. लेस फ्रॉम कैपिटल आप लिखो वहां पे, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल. Building will be fixed asset. Advertising, profit and loss. Interest on bank overdraft is also profit and loss. Sales, trading, creditors, current liability. Bank overdraft is also current liability. Provision for bad and doubtful debts, it will go in profit and loss. And so आपको चाहिए तो वहाँ पे हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिखेंगे. It will go in the formula. Okay, discount, profit and loss, liability, capital will go in the liability students, and last purchase return, less from purchase. Okay, so क्या होगा स्टूडेंट्स? परचेज कहाँ पर जाएगा? लेस फ्रॉम परचेज. यहाँ पे परचेज को हम टिक कर लेंगे बिकॉज लेस फ्रॉम परचेज है, तो परचेज में एडजस्टमेंट है. नाउ स्टार्टिंग विद द एडजस्टमेंट, फर्स्ट वन. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया है स्टूडेंट्स. क्लोजिंग स्टॉक कॉमन है, हर बार आने वाला है. ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. बराबर, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग 5,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. ओ माय गॉड, सो प्राइवेट परचेज मतलब हो सकता है ओनर ने अपने घर के लिए कोई सामान खरीदा हो, परचेज किया हो, बट हमने बाय मिस्टेकली परचेज में ऐड कर दिया हो. तो क्या ये अपने परचेज में ऐड होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमारे परचेज में ऐड नहीं होना चाहिए, तो परचेज से लेस कर देंगे. परचेज से लेस कर देंगे स्टूडेंट्स. और ये उसका प्राइवेट है. प्राइवेट इज बेसिकली ड्राइंग्स. बताओ ड्राइंग्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्राइंग्स हमेशा होता है लेस फ्रॉम कैपिटल. लेस क्या होता है? लेस फ्रॉम कैपिटल. चलो, आई होप आप लोग समझाओ. तो परचेज से लेस करेंगे और कैपिटल से भी लेस करेंगे. चलो टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स. परचेज में 2 टिक मार्क है, आपको 3 लाइन छोड़नी है. और कैपिटल में तो स्टूडेंट्स टिक मार्क करने की जरूरत ही नहीं, हम लोग हमेशा 8-10 लाइन छोड़ ही देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स. लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू क्या होगा? एड टू बैड डेब्ट्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स. चलो टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमें बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखना. टू बी वन बैड डेब्ट्स हो गया. बैड डेब्ट्स पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे. और डेटर्स में भी एक एडजस्टमेंट है, सो मैंने टिक कर लिया है. नेक्स्ट इज साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 इंक्लूड्स इन एडवर्टाइजिंग. चलो एडवर्टाइजिंग को भी टिक करेंगे स्टूडेंट्स. देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो एडवर्टाइजिंग है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने एक साइन बोर्ड डाला था. अब साइन बोर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? वो जो मेरे शॉप के बाहर लगा है साइन बोर्ड स्टूडेंट्स, वो 2 साल 4 साल 5 साल रुकने वाला है, तो वो मेरे लिए बेसिकली एक एक्सपेंस नहीं है. तो मैं पहले तो वो एडवर्टाइजमेंट से लेस कर दूंगा. इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर मी, इट इज बेसिकली एन असेट फॉर मी. व्हाई असेट? बिकॉज वो सिर्फ इस साल के लिए यूज नहीं होगा, वो 2 4 5 10 साल के लिए यूज होने वाला है. सो लेस फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड असेट साइड. एंड लास्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर है. चलो फर्नीचर को भी टिक करेंगे. फर्नीचर 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 फर्नीचर. ओके, ये रहा फर्नीचर. और फर्नीचर को भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टिक कर लेंगे.
सो क्या होगा, लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है, लेस फ्रॉम फर्नीचर। सेकंड इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स पीएनएल डेबिट साइड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। चलो जिस इसमें एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ ताकि मुझे उसमें लाइन छोड़नी मुझे याद रहे। तो हमारे स्टूडेंट्स फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, परचेज में एडजस्टमेंट है, बेड डेप्स का तो पूरा फॉर्मूला हम लिखने ही वाले हैं, वी ऑल हैव टू रिमेंबर दैट। डेटर्स में एक ही एडजस्टमेंट है, इस बार एक ही एडजस्टमेंट है, चलो अच्छा है। एडवर्टाइजिंग में एडजस्टमेंट है और बाकी सब तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सम हमने डिस्कस कर लिया है, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट नाउ, कमिंग ऑन द सम पार्ट। अब हम यहाँ पे सम पे आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा कैमरा को साइड में कर लेते हैं, फाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखा है बिकॉज किसी का नाम नहीं दिया था, तो मैंने इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिख लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं फिलहाल, पेज नंबर 414 पर है, और ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 है। चलो, और जो बेसिक चीजें हर बार आने वाली है स्टूडेंट्स वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखकर रख दी आपके स्क्रीन के सामने। सो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली सम से शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक दिया स्टूडेंट्स 25,000 रुपीज। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक 25,000 है, परफेक्ट। फिर फर्नीचर है 16,000। ओके, फर्नीचर में एडजस्टमेंट भी था स्टूडेंट्स, तो फर्नीचर लिख रहा हूँ और अमाउंट आएगा 16,000 रुपीज। परचेज किया स्टूडेंट, परचेज 5,55,300, 5,55,300। दो एडजस्टमेंट है, याद रखना है, इसमें 3 लाइन छोड़नी है, 5,55,300। नेक्स्ट आफ्टर दैट कैरेज इनवर्ड 4,700। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने टोटल 1 2 3 लाइन छोड़ दी, टू कैरेज इनवर्ड्स, और कैरेज इनवर्ड में अमाउंट है 4,700 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट बैड डेब्ट्स दिया। चलो बच्चे लोग, बैड डेब्ट्स का मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला हर बार की तरह ऊपर से कॉपी पेस्ट करके नीचे लाने वाला हूँ। ओके फाइन, तो ये मेरा बैड डेब्ट्स आ जाएगा, और मैं बैड डेब्ट्स यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में एक लाइन छोड़ने के बाद आपको बैड डेब्ट्स आपको कुछ भी शुरू करना है। सो बैड डेब्ट्स का 1,800, और ये हमें कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। पूरा का पूरा फॉर्मूला लर्न कर लो बैड डेब्ट्स का। वेजेस है 52,000, चलो वेजेस लिखेंगे इसके बाद, टू वेजेस एंड अमाउंट दिया वेजेस का 52,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट डेटर्स है 80,000 स्टूडेंट्स, डेटर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, डेटर्स, डेटर्स उसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट इस बार स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, 80,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 15,000 रुपीज। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस बार सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करने वाला हूँ, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपया। सो सेल्स रिटर्न का रेंट है 24,000। ओके, टू रेंट 24,000, नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आफ्टर दैट मिसलेनियस एक्सपेंस 3,400, टू miscellaneous expense 2,400, miscellaneous expense और 400 नहीं 3,400 स्टूडेंट्स, अमाउंट है 3,400। ओके, सैलरीज है 68,000, टू सैलरीज 68,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ेंगे सैलरीज के बाद। कैश दिया हुआ 8,900, चलो तो यहाँ पे कैश लिख रहा हूँ मैं, कैश 8,900 रुपीज। ओके, कैश का ड्राइंग्स है 14,000 स्टूडेंट्स। ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है, लेस फ्रॉम कैपिटल होता है, तो यहाँ पे करेंगे लेस ड्राइंग्स। अमाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखने वाले ड्राइंग्स में, 14,000 अमाउंट है स्टूडेंट्स। तो जब कैपिटल लिखेंगे तो उसमें से हमें लेस करना याद रखना है। बिल्डिंग है 1,60,000, चलो ठीक है, बिल्डिंग में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं लग रहा है मुझे, बिल्डिंग 1,60,000 रुपीज की बिल्डिंग है। नेक्स्ट आफ्टर दैट एडवर्टाइजिंग 10,000। ओके, एडवर्टाइजिंग में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, मुझे याद है, याद है। एडवर्टाइजिंग अमाउंट है 10,000 रुपीज। एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, चलो तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 7,000 रुपीज। चलो तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्रेडिट साइड नाउ। सेल्स दिया 7 लाख रुपया, चलो सेल्स दिया 7 लाख रुपया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, दैट कम्स टू 6,85,000 रुपीज। ओके, 7 लाख में 15,000, 6,85,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्रेडिटर्स दिया है, चलो क्रेडिटर्स लिखेंगे रैंडमली, मैं एक जगह क्रेडिटर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर 72,500 रुपीज, 72,500। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ स्टूडेंट्स, अमाउंट है 50,000 रुपीज। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट स्टूडेंट्स, ये अब हमें ट्रायल बैलेंस में मिला है, तो आपको फॉर्मूला देखना है, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस। ओल्ड आरडी होता है, जो भी आरडी हमें दिया होता है स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में वो हमारे हमेशा हमारा ओल्ड आरडी होता है, लेस करेंगे फॉर्मूला में। ओके, अब डिस्काउंट दिया है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड दिया, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 500 रुपीज।
कैपिटल 2 लाख रुपया दिया स्टूडेंट्स, 2 लाख कैपिटल है, उसमें से ड्राइंग्स हमारा 14 था, माइनस करेंगे 1,86,000 रुपीज। परफेक्ट। नेक्स्ट आफ्टर दैट परचेज रिटर्न 20,000 है स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न। चलो तो यहाँ पे मैं पहले परचेज रिटर्न वर्ड यूज कर लेता हूँ। उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वही वर्ड हम भी यूज करेंगे, परचेज रिटर्न, और अमाउंट दिया है 20,000 रुपीज। चलो तो कितना आएगा स्टूडेंट, 5,53,000 माइनस 25 विल कम टू 5,35,300। ओके 5,53,000 था तो 53 में से 2 कम कर दिया, 5,35,000 हो गया 300 रुपीज। ओके परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर दिया, पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। स्टार्टिंग द फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक दिया 36,000, तो क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट आएगा 36,000 रुपीज, 36,000 रुपीज। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में डाल दिया मैंने। नेक्स्ट प्राइवेट परचेज अमाउंट इंक्लूडिंग टू 5,000, तो स्टूडेंट्स लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, लेस। प्राइवेट परचेज का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स एक तरह से वो ड्राइंग्स हो गया है, और ड्राइंग्स कितना किया हमने, 5,000 किया हुआ स्टूडेंट्स, 5,000 रुपीज। तो इसका माइनस करेंगे 5,35,000, तो 5,35,000 में से अगर 5,000 तो 5,30,300 हो जाएगा, 5,30,000। ओके 300 रुपीज। ओके, और यहाँ से स्टूडेंट्स फिर से क्या करेंगे, फिर से यहाँ से भी हम ड्राइंग्स लेस करेंगे। कितना लॉस लेस करेंगे, और 500,000 रुपीज हमने ड्राइंग्स किया स्टूडेंट्स, दैट कम टू 1,81,000 नाउ। ठीक है, 1,81,000 हो गया। हमने यहाँ से भी स्टूडेंट्स क्या कर दिया, इसको लेस कर दिया है। परफेक्ट, दोनों में से लेस कर दिया। थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो यहाँ पे लेस करेंगे। एक तरह से स्टूडेंट्स क्या है, ये आरडीडी है, और ये आरडीडी हमें कहाँ मिला है, एडजस्टमेंट में मिला है। ओके स्टूडेंट्स, तो 5%, 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000 रुपीज होगा, क्योंकि 80,000 का 10% 8,000 होता है, तो 8,000 का आधा 4,000, तो 80,000 माइनस 4 विल कम टू 76,000, लेस फ्रॉम डेटर्स, एड टू बैड डेब्ट्स, ये हमारा आरडीडी है 4,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलो तो इसको टोटल करेंगे, कितना हो गया ये 5,800, ये हो गया 5,800, और उसमें से माइनस करना है 2,100, तो कितना आएगा 700, 3,700 आएगा स्टूडेंट्स, अमाउंट 3,700 रुपीज। ओके चलो, नेक्स्ट आफ्टर दैट, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा नेक्स्ट आफ्टर दैट, साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 इंक्लूड इन एडवर्टाइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें एडवर्टाइजिंग के अंदर जाना होगा। इसमें क्या हुआ है, लेस कर रहा हूँ, लेस साइन बोर्ड। तो स्टूडेंट्स साइन बोर्ड लेस करूंगा मैं। साइन बोर्ड कितने का था स्टूडेंट्स, मेरा साइन बोर्ड था टोटल 4,000 रुपीज का, और मैंने जैसे आपको बताया 4,000 स्टूडेंट्स, ये जो साइन बोर्ड है वो मेरे लिए असेट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। क्यों मेरा असेट है, क्योंकि ये मेरा यूज करने वाला फॉर मोर एंड मोर ईयर्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन बोर्ड, लिख रहा हूँ साइन बोर्ड विच कम्स टू 4,000 रुपीज। तो मैंने क्या कर दिया, एडवर्टाइजिंग से लेस करके उसको कहाँ डाल दिया स्टूडेंट्स, असेट साइड डाल दिया है। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट आफ्टर दैट फोर्थ एडजस्टमेंट, ओ माय गॉड मेरे 4 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। लास्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट रेट 10%। चलो डेप्रिशिएट करेंगे फर्नीचर को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेस डेप्रिसिएशन एट रेट 10% पर एनम। कितना है, अच्छा नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, यस 10% है। ओके तो कितना आएगा ये, 1,600 रुपये आएगा स्टूडेंट्स। तो 16,000 माइनस 1,600 विल कम टू हाउ मच, 14,400 बराबर। चलो सेकंड फैक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट साइड डालेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर था, फर्नीचर था, फर्नीचर, और कितना अमाउंट था, 1,600 रुपया डेप्रिसिएशन था। ओके स्टूडेंट्स चलो, तो आई गेस ये वाला सम काफी छोटा था एज कम्पेयर टू प्रीवियस सम ऑल्सो। ओके, तो बस यहाँ पे स्टूडेंट्स सम कंप्लीट हो गया। हम सम को क्या करेंगे, टैली करने की ओर बढ़ेंगे। तो सम को टैली करने के लिए मुझे पेन और पेपर चाहिए, जो मेरे पास अभी फिलहाल है एट प्रेजेंट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या लग रहा है मुझे, क्रेडिट साइड हैवी लगना चाहिए मुझे, ऐसे तो हर बार मोस्टली क्रेडिट होता है। 6,85,000, तो 6,85,000 है, और प्लस कितना है 36,000, 36 1 कैरी, 9 + 8 12 1 कैरी, तो कितना आएगा 7,21,000, 7,21,000, 7,21,000। ओके 85, तो 95 5 15 15 और 6 21, तो 7,21,000 परफेक्ट। अब इसको देखेंगे ये कितना है, 5,30,000 और 25 कितना होता है, 5,55,000, 5,55,000, 5,30,000 और 25 ना, 5,55,000 हो गया, और 300 आएगा। फिर ये कितना है, 52 और 4 कितना होता है, 56,700, 56,700।
बराबर, तो 0 0 0 1 कैरी, 2 1 कैरी, 11 1 कैरी, तो 6,12,000 हो रहा है स्टूडेंट्स, 6,12,000, तो 7,21 माइनस 6,12,000, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 9 बचेगा, 0, तो दैट कम्स टू 1,09,000। तो स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट आ रहा है 1,09,000 रुपीज। ये किस चीज का अमाउंट मिला है मुझे स्टूडेंट्स, ये मुझे मिला है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिला है 1,09,000 रुपीज, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करूंगा स्टूडेंट्स, और अमाउंट आएगा 1,09,000 रुपीज। ठीक है, तो अब 1,09,000 को यहाँ पे क्या करेंगे, 1,09,500 करेंगे, यहाँ पे भी सेम आएगा, 1,09,500 रुपीज आएगा स्टूडेंट्स। अब हमें डेबिट साइड देखना कौन सा अमाउंट है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डेबिट में भी काफी ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट है। ओ चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। 24 + 3 कितना होता है, 27,700। तो पहले दो अमाउंट को मैं साथ में ले रहा हूँ, 24 और 3 कितना, 27,700। ओके, 68 + 3 कितना होता है, 71,400, 71,400, काफी बड़े अमाउंट है। 71,400, ठीक है। 6 और 7 कितना होता है, 13, 13 और 1 14,600, 14,600, तो 0 0 7 1 कैरी, 7 8 9, 9 और 4 13, 1 कैरी, 10 11, 1,13,700। So, स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है मेरा डेबिट हैवी हो रहा है, मैं गलत था यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, मेरा डेबिट है 1,13,700, 1,13,700, ये मेरा डेबिट हैवी है स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलहाल के लिए। ओके, 1,13,700 हैवी है, तो यहाँ भी लिखूंगा मैं 1,13,700। और स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 1,13,700 में से क्या माइनस करेंगे, कितना अमाउंट है ये, 1,09,500, 1,09,500 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 200 आ गया। 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4,000 बच रहा है स्टूडेंट्स एग्जैक्ट। तो मेरा अमाउंट कुछ अप्रोक्सीमेटली 4,200 आ रहा है। ओके, लेट मी जस्ट चेक फॉर अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो द अमाउंट इज 4,200। ये हमारा लॉस आ रहा है स्टूडेंट्स, क्यों लॉस आ रहा है, बिकॉज हमारा डेबिट साइड ज्यादा हैवी है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स इस बार ग्रॉस नहीं, सॉरी, इसको ग्रॉस नहीं बोलेंगे, नेट लॉस बोलेंगे। यहाँ पे आई एम गोइंग राइट ओवर हियर नेट लॉस। चलो तो स्टूडेंट्स, ये लॉस 4,200 रुपीज आया हमारा। तो हम इस लॉस को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, इसे ऐड नहीं करते हुए लेस करना है इस बार, लेस नेट लॉस। और नेट लॉस का अमाउंट स्टूडेंट्स कितना है, 4,200 है, सो राइट ओवर हियर 4,200। अच्छा, 1,81,000 माइनस 4,200 स्टूडेंट्स कितना होगा, 1,81,000 माइनस 4,200। तो 4 तो 0, तो 1,77,000, तो 1,76,000 हो जाएगा, 1,76,800, 1,76,800। अब प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, क्या प्लस करेंगे, 1,76,800 को प्लस करेंगे, और ये कितना है 500, और 72 और 50, 1,22,500, 0 0 8 और 5 13, 1 कैरी, 9 9, तो 2,99,300 स्टूडेंट्स का टोटल आ रहा है 2,99,300। परफेक्ट। अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, लास्ट स्टेज पे हूँ, मैं असेट को सारा कैलकुलेट करने वाला हूँ। असेट स्टूडेंट्स कितना है, 1,74,400। चलो पहले दो 1,74,400 है, फिर हमारा 76,000 और 8 कितना होता है, 76 और 84,900 है। ओके, और लास्ट है हमारा 40,000। चलो ठीक है, 0 0 9 + 4 3, 1 कैरी, 9 15 15 और 4 19, 1 कैरी और 2। तो स्टूडेंट्स ये बाजू भी हमारा 2,99,300 अमाउंट आ रहा है, एग्जैक्ट 2,99,300। आपको चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम स्टूडेंट्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, एज आई हैव बीन टेलिंग यू इन ऑल माय प्रीवियस वीडियोस। स्टूडेंट्स मैं आप लोग को क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में भी, आप लोग को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। एंड यू विल गेट द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर, पूरा फोटो मिल जाएगा प्रॉपरली अगर आपको कहीं भी कोई पर्टिकुलर पार्ट मिस हो गया हो। Thank you so much, students. It was nice having all of you. Contact us for online tuitions if you want. And we are running online CBSE section 11, 12, and all section, commerce section, online tuitions also. Feel free to contact us. And please, ज़्यादा students, channel को subscribe जरूर कर लेना, share the video and like the video and share it with all your friends, of course. Thank you so much. Bye bye. It was nice having all of you guys. Perfect.